नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीरनी। डालें कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां केंद्र सरकार ने बैठ कर आतंक के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार की, वहीं इस हमले से जम्मू कश्मीर में पैदा हुए सूरत हाल पर मंथन के लिए प्रदेश सरकार ने भी आज एक सर्वदलीय बैठक की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई इस बैठक में तमाम सियासी दलों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में मौजूद सभी दलों के नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया जिसमें आतंक का मिलजुल कर सामना करने के साथ साथ हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से संवेदना जताई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव में शामिल किए गए सभी बिंदुओं की जानकारी दी। The participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam on 22nd April 2025 on innocent civilians, do hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir. We humbly and earnestly appeal to the governments of all states and union territories in these trying times to come forward with unwavering commitment to protect the Kashmiri students and citizens who find themselves far from home. These individuals, whether travelling or residing outside Jammu and Kashmir, must be safeguarded against any form of harassment, discrimination or intimidation. We call upon all political parties, community leaders, religious institutions, youth groups, civil society organizations and media organizations in J&K and the nation to maintain calm, resist provocations of those who seek to disrupt harmony and continue working together for peace and development of the region. Unanimously adopted on 24th April 2025 in Srinagar by the consent of all members present. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों को सुरक्षित वापस घर पहुंचाने के लिए वहां की सरकार जी जान से जुटी हुई है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने जहां बुधवार को श्रीनगर पहुंचकर महाराष्ट्र के 20 पर्यटकों की घर वापसी सुनिश्चित करवाई, वहीं जम्मू में फंसे 47 पर्यटकों को भी आज रेल मार्ग से वापस महाराष्ट्र भेजा गया है। महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव आज जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशेष ट्रेन में इन सभी लोगों की घर वापसी सुनिश्चित की। मैं बोलूंगा कि हमारे
लोगों की मदद में जुटे अंदर चली जा ना तू, बता दो इसमें अधिकतर वही तू अंदर चली जा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक डर का माहौल ज्यादा वक्त लग रहा है, कोई जो है प्लेन से जा रहे हैं, कोई से जा रहे हैं, कोई जो है ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं। आगे आगे साहब आगे सारे आ जाओ, ऐसे हाथ नीचे थोड़ा यार, जो भी यात्री पर्यटक वहाँ पर फंस गए थे, आपने देखा कि कल महाराष्ट्र से हमारे शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथराव शिंदे जी खुद स्पेशल फ्लाइट से वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर सभी लोगों से मिले, वो लोगों के सभी व्यवस्था करने का काम उन्होंने वहाँ पर किया और सभी लोगों को भी धैर्य देने का भी काम उन्होंने वहाँ पर किया। मैं भी आज सवेरे के पहली फ्लाइट से जो हमारे महाराष्ट्र के 20 लोग श्रीनगर में फंसे हुए थे और 47 लोग जम्मू में आकर फंस गए थे, तो लोगों को मिलने के लिए उनकी व्यवस्था करने के लिए मैं आ गया हूँ। 20 लोग श्रीनगर से 10:30 के फ्लाइट से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। अभी 47 लोग जम्मू से यहाँ पर हमने एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से स्पेशल कोच लगा के वो लोगों को भी महाराष्ट्र के लिए रवाना कर रहे हैं। सर जब वो हल्ला हुआ था तो हमारा प्रोग्राम दूसरे दिन का था वहाँ पे पहलगाम में, तो पहले वो श्रीनगर में हमारी होटल बुक थी, तो वहाँ पे हम रुके हुए थे, लेकिन हमको न्यूज़ के वजह से हमको मालूम गिर गया कि वहाँ यहाँ पे हल्ला होगा, 6 आदमी मारे गए, तो उसके वजह से हम थोड़े डरे गए थे। उसके बाद में और भी मालूम गिर गया कि 28 जन मारे गए, तो इतना डर पर पैदा हुआ था कि कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे हम कि क्या हो रहा क्या नहीं, कैसा अपन यहाँ से निकलेंगे। लेकिन हमने सबसे कांटेक्ट किया, अपने मिलिट्री ने भी पूरा मदद की, हमारी रेलवे प्रशासन ने मदद की, न्यूज़ वालों ने भी मदद की। अब केंद्रीय मंत्री हमारे प्रताप यादव आए हुए हैं हमको छोड़ाने के वास्ते। अभी वो यहाँ पे पूरी ट्रेन में एक बोगी अरेंज की हुई उन्होंने, सब वो लाइन लगे हुए उन्होंने, अभी वो घर तक पहुँचाएंगे पूरे। हमारी असुविधा मुझे यानी मेरे हाथों में ये सब चीज़ें नहीं थी, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए ताकि यात्री टूरिज्म पर ज़्यादा फोकस कर सकें। पर आज की कंडीशन और यात्रियों के एक मेंटली जो ट्रेस देखा है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ दिन यात्री कश्मीर की तरफ पीठ फेरेंगे। तो अभी सरकार क्या कदम उठाती है सब उस पर डिपेंड करता है। और जैसे अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, अमरनाथ यात्रा में तो ना डरेंगे, हम तो आएंगे अमरनाथ यात्रा। और जो हमारे देश के पीएम हैं इन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि आतंकवाद का खात्मा ये अब निश्चित है। और साथ ही हम लोग उनको बहुत बहुत शुक्र करते हैं कि उन्होंने इंडियन आर्मी की इतने सारे जवान वहाँ तैनात करके रखे हैं ताकि यात्रियों को परेशानी की सामना ना करना पड़े। क्या कहेंगे? अभी तो लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि फिलहाल तो आप कुछ दिनों में जब तक टेररिज्म के लिए आर्मी तब तक ऑपरेशन चला रही है तब तक तो भी कश्मीर थोड़े दिन आप आने का टालिए, उसके बाद जब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप बिंदास कश्मीर आ सकते हैं। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन के नेतृत्व में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। विश्वविद्यालय ने अनंतनाग के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए विश्वविद्यालय ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके बलिदान को याद किया। इसके बाद छात्र, शिक्षक और कर्मचारी एक शांतिपूर्ण विरोध रैली में शामिल हुए, जो परिसर से विश्वविद्यालय के गेट तक मार्च करते हुए आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाते हुए और राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए आगे बढ़े। रामनगर के सुनेतर गांव में एक दर्दनाक हादसे में 20 वर्षीय युवती अनु शर्मा की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनु शर्मा अपने घर में बिजली के पोल की तारों की मरम्मत कर रही थी, तभी अचानक बिजली आने से वह करंट की चपेट में आ गई। हादसे के तुरंत बाद परिजन उसे लेकर रामनगर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जब ये लाया तो ये डैडी था, तो इन्होंने यही बताया कि कोई बाहर से तार आ रही थी, उसके साथ चिपक गई थी। हमने उठा के अंदर रखी, पर हमारे जब हमें दिखी है यहाँ पे हॉस्पिटल में, डेड थी, ना पल्स है ना बीपी है। बाकी हमने ECG वगैरह किया। क्या उम्र
भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल, प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना सहित कश्मीर इकाई के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मृतकों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी आत्माओं की शांति की कामना की। पार्टी नेताओं ने पाकिस्तान की जमकर फजीहत करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार इस आतंकी मुल्क का सर्वनाश करके रहेगी और वो दिन अब दूर नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या वो चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में शांति हो? क्या वो चाहेगा कि कश्मीर का नौजवान जो है अपने बस्ते में पत्थर के बजाय किताबें डालकर जाए, पत्थर के बजाय लैपटॉप डाल के जाए, बच्चा हमारा यूपीएससी को क्रैक करे? क्या वो चाहेगा? वो तो चाहेगा कि कश्मीर में भी ऐसी हालत हो, जम्मू में भी ऐसी हालत हो जो पाकिस्तान में है, और वही टेररिज्म की जननी है। इसी कारण वो टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो कल परसों का वाक़या हुआ है, उन वीरों को, उन शूरवीरों को याद करने के लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि समारोह रखा था। उन वीरों को हम लोग नमन करते हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान निछावर की, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए जो है वो जान निछावर की। उन वीरों को हम लोग नमन करते हैं और तवक्को रखते हैं, और होगा भी कि उन वीरों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। जो भी टेररिस्ट हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सर शर्मा, ये आप नहीं मानते कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स वहां पर हुआ जिसके वजह से सताई जानी थी। आप ये मानकर चलिए कि उन वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जो भी टेररिस्ट हैं वो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। रिजल्ट आप लोगों के सामने कुछ ही एक आध दिन में, मैं जब कुछ नहीं कहूंगा, एक आध दिन में आप लोगों के सामने आएगा। वो शहादतें मुझे आज भी याद है, पुलवामा की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, और कल के उनके बयान में भी ये बात आई है कि उन वीरों की शहादतें जो हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। आप मान के चलिए वो टेररिस्ट नहीं रहेंगे, और वो लोग जो इसके पीछे खड़े हैं वो लोग भी जो है वो नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाशी में कल के दिन के लिए कश्मीर की जनता को देता हूं, जिन्होंने लीडर्स का न मान के लीडर्स को अपना मनवाया। ये पहली बार कश्मीर की तारीख में हुआ है जब जनता ने अपनी बात अपने लीडर्स को मनवाई। अन्यथा यहाँ पे लीडर्स किसी और दिशा में जनता को लेते थे। 36 साल लगे इस कश्मीर की जनता को ये करने में, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक है कश्मीर की जनता, जिन्होंने उन लीडर्स को जो हमेशा प्रोटेक्शन देते थे आतंकवाद को, अलगाववाद को, कल उन्होंने मजबूर किया उन लीडर्स को और अपने साथ उस आतंकवाद के विरोध में खड़ा कर दिया। कि इस वक्त भारत सरकार एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली है। वो शिमला ट्रीटी पे जाएं, भारत सरकार घबराने वाली नहीं है। पाकिस्तान को इस कुकृत्य का सबक जो कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे मीटिंग होके बता दिया है, उन्हें समझना चाहिए कि भारत सरकार आतंकवाद से कोई कंप्रोमाइज नहीं करे। कोई भी ट्रीटी आड़े आए, कोई भी डिस्कशन आड़े आए, आतंकवाद को दफन करके ही मोदी सरकार सांस लेगी। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया आतंकवाद को, पाकिस्तान को, उसके नैरेटिव को कल लात मारी। पहली बार 36 साल में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं जहां भी घटी, इस वाले नैरेटिव में न फंस के, पाकिस्तान के नैरेटिव में न फंस के, जो जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी हुई है, आतंकवाद को, पाकिस्तान को, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। जो दरिंदगी है और ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, और अंदर के हालात पे पाकिस्तानी आर्मी पर्दा ढालने के लिए इस तरह का गंदा खेल खेला है। और जितना डैमेज पाकिस्तानी आर्मी ने इस्लाम को करा है दुनिया में, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने डैमेज करा होगा।
सर ये बताइए कि भारत के मुख्तलिफ रियासतों से इस वक्त खबर आ रही कि कश्मीर स्टूडेंट को वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को जम्मू में भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहर की वार्ड 56 गंग्याल में भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया की अध्यक्षता में मृतकों को लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर मृतकों की याद में हवन भी किया गया। पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता इस मौके पर मौजूद थे। कुछ लोगों ने मिलकर जहाँ का हवन किया है और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। भगवान उनको श्री चरणों में जगह दे। लोग गुस्से में हैं, पूरा देश गुस्से में है ये जो हत्या हुई है, लेकिन विश्वास है लोगों को देश के नेतृत्व पर। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, जिस तरह अमित शाह जी आगे बैठ गए हैं, और आपको पता है कल जो 5 फैसले लिए गए हैं, इससे लोगों में विश्वास बढ़ा है कि कुछ ना कुछ आगे भी होगा और पाकिस्तान को जो इनका आतंकवादियों को पालने वाला है, इनका इलाज किया जाएगा। कल जो सिंधु समझौता और 5 और फैसले जो किए हैं उसको कैंसिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे आगे भी बहुत कुछ होगा। लोग भी चाहते हैं। मैं एक बार पुनः हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलसी, महामंत्री विबोध गुप्ता जी हमारे बीच में आए, जहाँ पे बीच में उन्होंने पूरा हवन में हमारा हिस्सा लिया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। गंग्याल मंदिर कमेटी ने यहाँ पर आज जो आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्मम हत्या की और कायराना हरकत करके वहां पर आए हुए टूरिस्ट जो हैं उनको धर्म पूछकर उनको मारा, उनकी हत्या की, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ जो है वो रखा गया था। बलदेव सिंह बलोरिया जी जो ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं, वो यहाँ पर मुख्य जजमान के तौर पर वो यहाँ पर उपस्थित थे। आपके माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो शहादत है, जो हमारे लोग टूरिस्ट जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। आतंकवादियों की कफन के ऊपर ये आखिरी कील साबित होगा। उनके परिवारों के साथ, शोकगुल परिवारों के साथ पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत खड़ा है। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई ने आतंकी संगठनों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने इस बार अमरनाथ जी की यात्रा में कोई बाधा डाली तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने इन आतंकी संगठनों को साफ तौर पर चेताया कि वो यात्रा में बाधा डालने की कोशिश न करें, अन्यथा शिवसेना अपने अंदाज में इसका जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा अवधि के दौरान शिव सैनिकों का एक जत्था पहलगाम और दूसरा बालटाल आधार शिविर पर तैनात रहेगा ताकि श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया जा सके। शिवसेना आतंकवादियों को दहशतगर्दों के नाम भी जो है वो खुली चेतावनी आप लोगों के माध्यम से जारी करती है कि अगर यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना घटी तो शिवसेना को अपने अंदाज के अंदर, अपने पुराने अंदाज में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूरे देश में इसका जो है वो जवाब दिया जाएगा। ये दहशतगर्द अपने मन में जो है पहले बना ले, सोच ले अच्छी तरह से। आपको बता दूं कि हमारे जो उस समय यात्री आएंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए शिवसेना ने एक और निर्णय लिया है कि हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई के जो है एक जत्था पहलगाम जो मुख्य आधार शिविर है वहां पर उपस्थित रहेगा यात्रा अवधि के दौरान, और बालटाल के अंदर भी हमारी उपस्थिति होगी ताकि आने वाले यात्रियों की हौसला अफजाई की जा सके और उनकी जो है सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सके। जो मुख्य आधार शिविर है जम्मू के कासिम नगर इलाके में करवाए गए कुछ विकास कार्य आज लोगों को समर्पित कर दिए गए। कासिम वार्ड नंबर 47 में हुए इन विकास कार्यों का उद्घाटन आज बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने किया। विधायक ने बताया कि इस वार्ड में कुछ अन्य विकास कार्य भी किए जा रहे हैं जिन्हें जल्द संपन्न कर लिया जाएगा। वार्ड नंबर 47 में ये 40 लाख रुपए की लागत से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जिसको सच्चाई ये है कि हमारी ऑनरेबल काउंसिलर शारदा देवी जी ने प्रपोजल में रखवाया था। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स ने अपने हर वार्ड में जहाँ जहाँ हमारे बीजेपी के काउंसिलर चुन के आए उन्होंने अपनी जिम्मेवारी के साथ पूरा निर्वाह किया और लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं।
इनफैक्ट आज 2-3 साल भी हो गए, उनका टर्म भी खत्म हो गया, उसके बावजूद भी वो लोगों के साथ लगातार संपर्क में है। आज हमने ये 47 नंबर वार्ड में बहुत लंबी डिमांड थी, लोगों के लिए चलना दुश्वार हो चुका था और एक बेहतरीन कार्य जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों ने और हमारे कंट्रैक्टर ने अच्छा काम किया है। काम की क्रेडिबिलिटी भी और क्वालिटी दिखती है कि दूर से पता लगता है कि किसी आप पॉश इलाके में घूम रहे हो। अच्छी सीढ़ियों का निर्माण हुआ है। मैं स्थानीय लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आपके घर के बाहर का इलाका है, इसको साफ रखने का प्रयास कीजिए। अमूमन हम क्या करते हैं कि घर का कूड़ा घर से साफ करके तो गेट के आगे या अपने या किसी पड़ोसी के गेट के आगे डाल देते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी वाले उठा के लेके जाए। म्यूनसिपैलिटी वालों ने भी अपना काम करना है, लेकिन मेरी भी एक नागरिक के नाते जिम्मेवारी बनती है। मैं शारदा देवी जी को बधाई दूंगा कि आपने एक कॉर्पोरेटर के नाते अच्छा काम किया है और आपके किए हुए कामों को आज हम अमली जामा बना रहे हैं। ऐसे ही और अनेक काम हैं जो वार्ड नंबर 47 में शुरू किए हुए हैं, आने वाले दिनों में उनको भी कंप्लीट करके लोगों के हवाले करेंगे। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।